Hello students, welcome to Savan Science Academy and a new lecture on the topic Organic Chemistry's Basic Principles. So in the last videos or in the last lectures we have completed about alkane, alkenes and alkynes. We have seen them separately. Now it's time to go a little bit tougher. From today we will see about the IUPAC naming of different functional groups. So from this, in today's lecture, first we will see which all functional groups are present in organic compounds, how to give them name, वो सब हम लोग आज देखेंगे. Now see, I already told you how to write the IUPAC name. It is सबसे पहले हम लिखते हैं prefix, secondary वाला prefix, which generally has the substituents. ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं ये मैंने पहले के लेक्चर में भी बताया है. जैसे मैंने बताया था, इट कैन बी हैलोजेंस, दैट इज इट कैन बी X, where X stands for फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. देन इसके अलावा इट कैन बी नाइट्रो ग्रुप rather, which is NO2. then we also have alkoxy group over there, that is OR dash, and last but not the least is the alkyl groups. So these are the groups which are written in prefixes and in the alphabetical order that we want. Secondly, then we should add the primary prefix, which generally is applicable to ring compounds. Okay, generally if a compound is ring, that time we generally use cyclo or bicyclo. This we will be studying at the end of the after the functional groups separately, and spiro compounds. So this is the generally written as the primary prefix. Then it is followed by the root word. Root word means the the total number of carbon present in that organic compound in its longest chain. So that we all know, that is meth, eth, prop and so on. ठीक है, so these are the root words. Parent chain वो तुम लोग लिखोगे. Then we write the primary suffix. A primary suffix I have already told you, we generally use alkene, alkyne or alkane, whichsoever it is present. ठीक है, alkane, alkene, alkyne, because these functional groups are present in the chain. So they are never, if these are the you can say lower priority functional groups also, still they are written with the main chain in suffix. They are never written as prefixes. And the last and the most important, which is today's topic, that is the secondary suffixes, which includes the functional groups. ठीक है, तो सभी functional groups, because those groups actually define the physical and chemical properties of this carbon chain. So that functional group is written at the end. So if it is alcohol, we'll write all. If it's acid, we'll write carboxylic acid, so we'll end it with oic acid. Aldehydes hai, so al. ठीक है, ketones है तो on, so on. So today we will see, focus on first on this section. First, what is a functional group? I have already discussed this. Again I will discuss this. It's a very short topic. And then which all functional groups are present, and there is a priority chart. Means if in an organic compound, polyfunctional group organic compound, if it is there, means if a carbon chain has two or more than two different functional groups, so as the secondary suffix, which should be written over there. Rest others will be written as in prefix form. Means the other functional groups, which is the less priority functional group, it should be written as a substituent. ठीक है, because the main properties of that carbon chain is governed by that main functional group. So उसका एक preference order है. So today we will be seeing that. तो सबको समझा है? We studied this. So these we will be studying halogens. They are under functional groups, but they are of low priority. They are written in always as prefix also. ठीक है, so they are generally considered substituents. Alkoxy, nitro, halogens,
दे आर ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप्स वैसे तो, ठीक है, बट दे आर इवन इन दैट ऑल्सो they are written in prefixes form. Always they are written in prefixes form also. So we'll be studying these also. Alkyl groups, so we have already studied. Cyclo, we have studied rather in alkane, alkene, alkyne, cyclo compounds. These two अभी तक हुए नहीं, आएंगे अभी, होगा, ठीक है, रुको जरा, फॉलो करते रहो. Then ये तो कार्बन नंबर की चेन्स पता है, मिथ, इथ, प्रो से लेके डेकेन तक एटलीस्ट पता होना चाहिए. प्राइमरी सफिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं. एन फॉर अल्कीन, इन फॉर अल्कीन, आइन फॉर अल्काइन, ये सब हम लोग कर चुके हैं. तो अभी सबसे मेन है इनके बारे में जानकारी हासिल करना. तो आज का टारगेट यही होगा. फिर अगले वीडियो से हम दो फंक्शनल ग्रुप्स करते जाएंगे, ठीक है. तो मजा आएगा, फॉलो करते चलो, स्लो एंड स्टडी चलेंगे ताकि दिमाग में घुसे, ठीक है. सो the today's topic is the functional groups and the priority of functional groups. and तो ये लिख लेंगे, ठीक है. so I'll be drawing a table. first of all पूरी प्रायोरिटी देख लेते हैं, फिर एक एक फंक्शनल ग्रुप उसी प्रायोरिटी के लिस्ट के वाइज हम लोग देखेंगे. तो सबसे टॉप प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? सो इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है. कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज द टॉप प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप जो कि COH है. उसके बाद सल्फोनिक एसिड ग्रुप, ठीक है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप विच इज SO3H, विच इज द सल्फोनिक एसिड ग्रुप, ये है. नेक्स्ट आता है एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड. मैं इसमें एक ट्रिक बताने की भी कोशिश करता हूं. बहुत बच्चे होते हैं सर याद नहीं रहता, क्या करें, ठीक है. सो उसके लिए क्या कर सकते हैं वो भी देखेंगे. एसिड अनहाइड्राइड, देन एस्टर्स जिसका आता है COOR-. एस्टर्स के बाद एसिड क्लोराइड्स, टू बी प्रिसाइज एसिड हलाइड्स लिख सकते हैं, ब्रोमाइड भी आ सकता है वगैरह, बट क्लोराइड ही सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं रिएक्शंस वगैरह में. सो एसिड क्लोराइड्स, देन एसिड अमाइड्स, सो दिस इज CONH2. सो ये वो फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला है, तो याद रखोगे. सो एसिड क्लोराइड्स, इसके बाद नाइट्राइल्स, ठीक है, नाइट्राइल्स. अब मैं जानबूझ के ट्रिपल बॉन्ड N, ये एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप है तो इसको C ही लगा होगा, ठीक है. कॉमन नेम में साइनाइड है, IUPAC में नाइट्राइल है, याद रखोगे. आइसोनाइट्राइल, ये नेक्स्ट है विच इज N ट्रिपल बॉन्ड C, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है. तो आइसोनाइट्राइल. देन इट इज अल्डिहाइड्स which is CHO, then it is ketones which is C double bond O C. so both the bonds are with carbon, ये double bond O लगा है तो ये ketones. then you have phenols and then alcohols, ठीक है. you have वैसे तो phenols वगैरह आएंगे नहीं बट स्टिल डायरेक्टली लिखते हैं अपन alcohols, ठीक है. इसके बाद आएंगे अमाइंस, अल्कोहल्स एज वी ऑल नो OH, अमाइंस एज वी ऑल नो NH2, ठीक है. लास्ट टू इज योर अल्कीन्स एंड अल्काइंस. सो ये आखिरी के दो है, C डबल बॉन्ड एंड C ट्रिपल बॉन्ड C. सो दिस इज द प्रेफरेंस ऑर्डर दैट यू नीड टू लर्न, ठीक है. ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हमें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 2 years 11वीं 12वीं ये हमें देखने हैं, इनके लेसन्स है. सो 11th स्टैंडर्ड में वी हैव अल्कीन, अल्काइन, अल्केन एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स. एंड फिर अगले साल एसिड्स, ये एसिड्स के डेरिवेटिव्स, नाइट्रो कंपाउंड्स भी है, अमाइंस चैप्टर भी है तो उसमें अमाइंस आएगा. अल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड्स एक चैप्टर है एंड अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स भी एक चैप्टर है. सो ये है प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स. थोड़ा सा याद करने के लिए पैटर्न क्या है, तो सिंपल, बहुत बच्चे बोलते सर कैसे लर्न करें. तो
एक दो छोटी चीज है, मतलब सिंपल सी बात है, पबजी से अगर टाइम मिले तो वो हो सकता है श्योरली, ठीक है। पबजी, नेटफ्लिक्स, थोड़ा इससे ये अगर कम कर दोगे, वो थोड़ा टाइम अगर लर्निंग में डालोगे तो शायद जल्दी लर्न हो जाएगा। बट स्टिल आई विल गिव यू अ हिंट। क्या है, स्टार्टिंग में देखो एसिड्स है, ये सारे एसिड के ही डेरिवेटिव्स है, मतलब याद रखने का। अब ये सीक्वेंस लर्न करना पड़ेगा, एसिड एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, एसिड क्लोराइड और फिर एसिड अमाइड। तो ये एसिड से ही बने हुए कंपाउंड्स और उनके फंक्शनल ग्रुप है, देख सकते हो COH, ये कैसे बनता है, तो एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनता है, तो इट इज फॉर्म फ्रॉम 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है। अनहाइड्राइड मींस पानी निकालना है। सो इफ यू रिमूव दिस एज वाटर, H गया, OH गया, सो दिस विल कॉमनली फॉर्म ऑक्सीजन। सो ये फंक्शनल ग्रुप वहां लिखा है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। सबको समझा है? सो एसिड का ही बना हुआ है, एस्टर है, ठीक है। फिर एसिड का OH की जगह पे Cl है, OH की जगह पे NH2 है, बस वही है। सो यू हैव टू लर्न इन दिस सीक्वेंस। देन नेक्स्ट दो है वो ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं फंक्शनल ग्रुप्स। नेक्स्ट जो दो है वो सब डबल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप्स है। ये कैसा है, तो इट इज C डबल बॉन्ड OH, ये कैसा है, C डबल बॉन्ड O, दैट्स इट, ये है। एंड नेक्स्ट के दो सिंगल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप्स। अब इतना तो सब लर्न हो ही सकता है, इससे ज्यादा और कोई मतलब मुझे तो नहीं दिखता कुछ उसमें याद रखने का सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। एसिड्स और पहले एसिड्स के ही डेरिवेटिव्स, वो फंक्शनल ग्रुप्स। फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले ये दो है, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। फिर डबल बॉन्ड वाले अल्डिहाइड, कीटोन्स। देन सिंगल बॉन्ड वाले फिनॉल भी है, अल्कोहल भी है, एंड अमाइंस, ये एक है। अमाइंस में भी 3 आते हैं, तो हम एक एक जब देखेंगे तब हम क्लियरली करते जाएंगे ये। एंड अल्कीन, अल्काइंस तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। बट देखो अल्कीन्स आर प्रिफर्ड ओवर अल्काइंस। तो आज के इसमें कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे जिसमें हम ये वाले देखने वाले हैं कि जहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड में कौन प्रिफर्ड रहेगा, उसका नेम ही हम लोग आज देखेंगे। तो सबको ये क्लियर है? मैं अभी ये सब फंक्शनल ग्रुप्स के नाम, उसका ये फॉर्मूला, अगर वो सफिक्स में आता है तो उसका सफिक्स क्या होगा। पर मैंने बताया कि अगर जैसे एग्जांपल है, सपोज ये क्वेश्चन है कि इधर OH भी है और इधर डबल बॉन्ड भी है, तो तुम देखते हो अल्कोहल और कीटोन में प्रिफर्ड कीटोन है, तो एंड में सफिक्स लगेगा कीटोन का, ओन। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो फिर इसको क्या लिखने का है, तो दिस विल बी रिटन एज प्रीफिक्स। मतलब कौन सा, द सेकेंडरी प्रीफिक्स में इसका नामकरण करना पड़ेगा, एंड वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पकड़ा जाएगा। तब उसे प्रीफिक्स फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखना है, तो वो हम लोग आज पूरी लिस्ट देखेंगे। 3-3, 4-4 लिख रहा हूं, थोड़ी देर रुकूंगा, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, लिख लोगे, ठीक है। सो लेट्स सी, ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हमें देखने हैं आज। इनको सफिक्स में क्या लिखते हैं, बिकॉज हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं वो सेकेंडरी सफिक्सेस के ऊपर ज्यादा जोर है। बट फिर अगर पॉली फंक्शनल ग्रुप वाला कोई कार्बन कंपाउंड आता है तो एक को छोड़कर फिर बाकियों को सब्स्टिट्यूएंट्स के तौर पे लिखना पड़ेगा, तब उन्हें प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं वो भी हमें देखना है। सो पहला नेम आएगा, फिर दूसरा स्ट्रक्चर आएगा ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। सो वी आर स्टडीइंग अबाउट द फंक्शनल ग्रुप, तो सिंपल है। नेक्स्ट IUPAC में सफिक्स क्या लिखोगे, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। व्हेन कम्स इट एज सेकेंडरी सफिक्स तो क्या लिखना है अगर वो मेन फंक्शनल ग्रुप है तो। एंड IUPAC में ही प्रीफिक्स में क्या लिखोगे, एज सेकेंडरी प्रीफिक्स if it comes as a substituent। तो अगर वो ब्रांच की तरह लिखने की नौबत आई तो उसे क्या लिखना है, तो ये सब एक एक हम लोग देखेंगे। शुरुआत में पहला हम देखने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो द नेम इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, वी राइट इट इन दिस वे। तो ये वाला बॉन्ड खाली है जो कार्बन चेन से लगा होगा, बाकी ये रहेगा फंक्शनल ग्रुप। तुम ऐसा भी लिख सकते हो
कुछ बुक्स में ऐसा हम लोग ऐसा भी लिखते, कभी कभी कुछ जन बुक एंट्रेंस में ही ऐसा लिखते हैं CO2H, स्टिल इट मींस द सेम। तो ये सब याद रखोगे, COOH, ये भी COH और ये भी COH ही है। सो इन दिस वे अगर आता है तो हम इसे लिखते हैं ओइक एसिड इफ इट्स एन एलिफैटिक चेन। अब ये भी हम देखेंगे, ये लिख के रखो, जब हम एक एक फंक्शनल ग्रुप करेंगे तब ये इसका डिटेल में मैं जाऊंगा। एलिफैटिक चेन में जब भी होगा तो इवन साइक्लो एलिफैटिक चेन, ओपन चेन, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें अगर मेन ग्रुप आए तो तुम सफिक्स लिखोगे ओइक एसिड, बट you will be writing carboxylic acid as the suffix, ठीक है, if it's a cyclo compound, ठीक है। साइक्लो, अगर प्रीफिक्स साइक्लो आ गया, जो प्राइमरी प्रीफिक्स हमने पढ़ा था, अगर जैसे एग्जांपल है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज करो ये क्वेश्चन है और इसके आगे ये COH लगे, मतलब रिंग को COH। अब याद रखो, रिंग में कभी ऐसा नहीं आ सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता एसिड, बिकॉज तुम देखो कार्बन के 4 बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड हो चुके, एक ही बॉन्ड है, जबकि इस रिंग में वो 2 बॉन्ड बना रहा है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, किसी कार्बन को वो COH लगाना पड़ेगा। अब हमको पता है कि फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लीस्ट नंबर, तो यहां से करेंगे तो ये एक ही कार्बन की चेन होगी, बैक टू बैक में ऐसा नहीं जा सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिंग को नंबर करना पड़ेगा लोएस्ट। तो जिस कार्बन के रिंग को ये लगा है वो लोएस्ट नंबर 2 3 4 एंड 5, सो इसका नाम क्या आएगा, दिस विल बी साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तब हम ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो दूसरा सफिक्स में दे रहा हूं वो याद रखोगे, तो जब हम एक एक फंक्शनल ग्रुप देखेंगे तब उसमें क्या काम आएगा उसका वो मैं बता दूंगा। सबको समझा है? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू राइट ओवर देयर, ठीक है। तो ये सब हम देखेंगे, ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया कि हम यहाँ पे ओइक एसिड नहीं लिख सकते, जब यही 4 कार्बन का ऐसा है तब मैं लिख सकता हूँ ब्यूटेनोइक एसिड, लॉन्गेस्ट चेन में है, स्ट्रेट चेन में, तो वही बोल रहा हूं एलिफैटिक चेन आएगा तो ओइक एसिड लिखना है, ठीक है। जनरली ये आया तो जरूरत नहीं है। अब देखा जाए तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसकी नौबत आती नहीं है क्योंकि ये डोमिनेंट ग्रुप है, इसके ऊपर तो कोई हायर फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो ये कब ब्रांच में जाएगा, ठीक है। पर कभी कभी ऐसा हो सकता है चेन में दोनों साइड ये है और कहीं बीच में भी COH लगा है, ऐसा भी एक आधा कंपाउंड आ सकता है। मैंने बोला ये सब प्रोबेबिलिटीज हम लोग देखेंगे जब हम रिस्पेक्टिव फंक्शनल ग्रुप देखने वाले हैं, तो उसमें हम उसे कार्बोक्सिल की तरह लिखते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो कार्बोक्सिल, वैसे तो कभी नौबत नहीं आएगी बट स्टिल उसको हम कार्बोक्सिल लिख सकते हैं। So this is what we need to write if acid comes as the main functional group. प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स की नौबत तो आनी नहीं चाहिए, ठीक है। टेक्निकली नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, उसका एक अलग पैटर्न भी है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, हम वैसा भी लिख सकते हैं, तो वो भी एक हम देखेंगे। बट जनरली इसके ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो ये ब्रांच में जाने की नौबत ही नहीं आएगी, सो जनरली इसको हम कुछ नहीं देंगे। नेक्स्ट वन, अब इसके बाद आता है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि ये बनता कैसे है, तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या आएगा, COO, तो 2 एसिड्स में से पानी निकाल दो, यू विल गेट दिस। इसका मेन जब लिखोगे तो हम इसे लिखते हैं ओइक अनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, हम इसको प्राइमरी प्रीफिक्स में लिखेंगे ओइक अनहाइड्राइड, ठीक है। इसकी भी नौबत जनरली कोई क्वेश्चन वैसा मिलता नहीं है, सो नीड नॉट हैव टू वरी। सो इसका जब लिखोगे तो हम लिखेंगे उसे ओइक अनहाइड्राइड, मतलब एक एग्जांपल तुरंत बता के मैं खत्म करता हूँ ये। सो सपोज ये एक क्वेश्चन है, सो हम क्या देखते हैं, 2 कार्बन है, ये भी 2 कार्बन, तो एक्चुअली बना तो इथेनोइक एसिड से ही है, मतलब शायद पहले ये ऐसा रहा होगा, पानी निकल गया, वो रह गया, सो हम इसे बोलते हैं इथेनोइक अनहाइड्राइड। सो ऐसे वाले इसको हम क्या बोलेंगे,
IUPAC में वी कॉल इट एज इथेनोइक अनहाइड्राइड। सो एंड में ये वाला उसका सफिक्स लगता है अल्केनोइक अनहाइड्राइड। अब इसमें भी डबल बॉन्ड रहेगा तो इथीन, अब वैसे तो होगा नहीं, प्रोप में आ सकता है, प्रोप टू इन ओइक अनहाइड्राइड वैसे भी हो सकता है। ठीक है, इसका डिटेल हम लोग देखेंगे जब हम ये वाला फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स में कुछ नहीं है, सबको समझा। नेक्स्ट वन, इसके बाद आते हैं एस्टर्स। फटाफट देखते तो एस्टर्स का फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOR डैश, COOR डैश। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं अगर ये आता है सो अल्केन, अल्किल अल्केनोइड। हम इसका पूरा नाम क्या लिखते हैं, अल्किल, एक्चुअली लिखेंगे अल्केनोएट। सो इसका सफिक्स आता है एक्चुअली ओएट। तो ये वाला अल्किल जो है ये पहले लिखा जाएगा हमेशा, फिर ये बड़ा हो छोटा हो, COO को हम लोग अल्केनोएट लिखते हैं। सो दिस इज हाउ एस्टर्स आर नेम। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अगर ये साइक्लो में आता है, वापस ये भी है, ये कब लिखोगे, जब एलिफैटिक चेन में आता है। एलिफैटिक चेन में जब आएगा तो तुम लिखोगे अल्किल अल्केनोएट। बट जब साइक्लो है, साइक्लो चेन, रिंग चेन है, तो हम इसे लिखेंगे अल्कोक्सी, अल्कोक्सी कार्बोनिल, अल्कोक्सी कार्बोनिल। सो अगर OCH तो मिथॉक्सी कार्बोनिल हम ऐसा लिखेंगे। ठीक है, सो अल्कोक्सी कार्बोनिल। एंड सेम अगर सफिक्स में भी आता है तो इसको हम लिखते हैं एज अल्कोक्सी कार्बोनिल। मतलब एक साइड एसिड है और एक साइड एस्टर ग्रुप लगा है कार्बन चेन को, तो कैसे नेम करोगे, तो ऑब्वियसली हम इसको पहले अल्कोक्सी कार्बोनिल, मतलब वो ब्रांच में जाएगा एस्टर, नाम तो एसिड के नेम से ही जाएगा बिकॉज वो डोमिनेंट ग्रुप है। सो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, बट जब ये आएगा तो प्रीफिक्स में हम उसे अल्कोक्सी कार्बोनिल लिखेंगे। तो मैंने बताया जब आएगा वो फटाफट मैं समझा दूंगा, एक एक फंक्शनल ग्रुप के वक्त हम देख ही लेंगे। तीनों लिख लो जल्दी है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो जब रिस्पेक्टिव फंक्शनल ग्रुप आएगा तब मैं ऑब्वियसली स्ट्रेस तो करूंगा ही उसी के ऊपर। सो इन चीजों में ध्यान दोगे। सो एलिफैटिक चेन जब आएगा तो हम अल्किल अल्केनोइड लिखते हैं, साइक्लो चेन आएगा तो अल्कोक्सी कार्बोनिल, ये नाम में आएगा पीछे, एंड यही ब्रांच में भी लिखा जाएगा अगर कभी वो आता है तो। ठीक है, हो गया सबका। स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो पॉज कर सकते हो, यू कैन राइट दिस। तो होप सो फर्स्ट 3 हो गए हैं। नेक्स्ट पे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है वो भी दो एसिड के ही डेरिवेटिव्स है। ठीक है, वो भी एसिड के ही डेरिवेटिव्स है। नेक्स्ट वन इज हम इसे बोलते हैं एसिड क्लोराइड्स या हलाइड्स भी लिख सकते हो। इसका जनरल फंक्शनल ग्रुप आएगा COCl। अगर ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड, आयोडीन होगा तो आयोडाइड, वैसा तुम लिख लेना। अब इसमें भी वापस एलिफैटिक चेन में लिखने का तरीका कुछ अलग है। एलिफैटिक चेन में मतलब ओपन चेन होगी तब जनरली इट इज लिखा जाता है इओनिल क्लोराइड। ठीक है, इओनिल क्लोराइड, ये जनरली हम एंड में लिखेंगे। एंड अगर साइक्लो चेन है, साइक्लिक चेन है, तो उसमें हम इसे लिखते हैं क्लोरोकार्बोनिल, या अगर ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो कार्बोनिल। तो ये हम लोग लिखेंगे साइक्लिक के केस में। ठीक है, तो एलिफैटिक चेन आती है तो ये लिखो, साइक्लो चेन आती है तो ये तुम लोग पीछे लिखोगे एज सफिक्स। एंड ब्रांच में आता है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तब भी हम लोग इसे क्लोरो कार्बोनिल ही लिखेंगे। अगर एलिफैटिक चेन में ये ब्रांच में आता है, मतलब एक साइड से एसिड है, सपोज ऐसा क्वेश्चन है, और एक साइड से COCl है, तो अब कैसे नाम करोगे? एसिड को तो ब्रांच में नहीं डाल सकते, तो इसको भी ब्रांच में डालना पड़ेगा। तो ऐसे वक्त में उसको नाम कैसे देंगे वो हम देखेंगे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में। रुको, आराम से जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, ये समझा। एंड लास्ट वन इज एसिड अमाइड, मतलब एसिड सीरीज में का लास्ट, और फंक्शनल ग्रुप्स बाकी है। ठीक है, एसिड अमाइड्स में क्या आएगा? CONH2। ठीक है, तो इधर भी वापस वही एलिफैटिक
एलिफैटिक चेन्स में जनरली वी राइट अमाइड, ठीक से देखो, इट इज नॉट अमाइन, इट इज अमाइड, ठीक है। इथेन अमाइड वगैरह लिखेंगे तो CONH2 इज अमाइड, बट साइक्लो चेन में आया तो इसको दो नाम है, यू कैन राइट कार्बोमोइल, ठीक है, कार्बोमोइल, या तो तुम इनको लिख सकते हो अमीनो कार्बोनिल, NH2 स्टैंड्स फॉर अमीनो, और यू कैन राइट कार्बोनिल। सो ये नाम तो दोनों याद रखने पड़ेंगे। अगर IUPAC नेमिंग में अगर सपोज MCQ में क्वेश्चन आया रहेगा कार्बोमोइल, तो पहले पता तो होना चाहिए कार्बोमोइल है क्या। सो इट इज CONH2, एंड सेम ब्रांच में भी हम इसे अमीनो कार्बोनिल या कार्बोमोइल लिख सकते हैं, अमीनो कार्बोनिल ज्यादातर। सो ब्रांच में अगर आएगा तो हम इसे अमीनो कार्बोनिल लिखेंगे। सबको समझाया क्या? फर्स्ट 5 ये भी लिख लोगे जल्दी, तो ये इसके बारे में है, इसके ये 2 पार्ट्स एंड देन इसके ये 2 पार्ट्स। सो इन दिस वे यू कैन राइट दीज फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो पीछे ये नामकरण होगा एलिफैटिक चेन और ये। अब तुम बोल रहे हो सर ऐसा कैसे क्या? तो रीजन देखो, यहाँ पे खुद फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि इसको कम से कम नंबर देना है। तो जब हम नाम करेंगे तो ये सबसे कम, अब सबसे कम मतलब फर्स्ट ही लेना पड़ेगा। अब अगर एक साइड से एसिड आ गया, सपोज एक साइड से एसिड आ गया और एक साइड से अमाइड आ गया, अब 2 फर्स्ट नंबर तो नहीं दे सकते, तो प्रेफरेंस ऑर्डर में इसी को आता है, तो फिर इसको ब्रांच में डालना पड़ेगा। तो ऐसे वक्त में ये नाम तुम्हें देने होते हैं। तो ठीक है, तो ये नाम भी जो आए हैं वो उसी की देन है। तो होप सो सबने ये फर्स्ट 5 लिख लिए होंगे, पहले 3 मैंने लिखे थे, अब ये अगले 2 हैं। 5 हो गए सबके? चलो रब करूं मैं, लिख लो जल्दी, मैं टाइम दे देता हूं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड फिर या तो वीडियो पॉज करो, यू कैन राइट इट, ठीक है, ओवर देयर, ठीक है, लिख लिया सबने? चलो देन नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो हो गए एसिड वाले। तो मैंने देखो याद रखने की ट्रिक में क्या बताया था, पहले सब एसिड डेरिवेटिव है। अब तुम बोलोगे सर आपने सल्फोनिक एसिड नहीं लिया है। बच्चों सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। सल्फोनिक एसिड के गिन चुनकर 1-2 रिएक्शन है, इसके अलावा मतलब उस कंपाउंड के प्रिपरेशंस वगैरह हमें सिलेबस में नहीं है, सो हमें करने की जरूरत नहीं है। और जो भी सल्फोनिक एसिड के वो सब बेंजीन रिलेटेड रिएक्शंस में है। एलिफैटिक रिएक्शंस में कोई बेंजोइक एसिड का रिएक्शन जल्दी नहीं है, सो नीड नॉट हैव टू वरी। नेक्स्ट वन जो था वो है नाइट्राइल्स, ठीक है। नाइट्राइल मतलब इसमें क्या आएगा, एक्चुअली द फंक्शनल ग्रुप इज ट्रिपल बॉन्ड N where all the carbons where all the bonds of nitrogen is joined with a single carbon। फंक्शनल ग्रुप यही पकड़ना है, इट्स नॉट CN। हाँ CN कॉमन नेम बोलते हैं, साइनाइड्स कॉमन नेम है वो, IUPAC नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड N and all the bonds with one carbon is nitrile group, ठीक है। यहां पे भी अब थोड़ा सा वैसा है, एलिफैटिक चेन अगर है we will write it as अल्केन नाइट्राइल, या जो भी अल्कीन जो भी होगा, it should end with the suffix नाइट्राइल। सफिक्स सिर्फ ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, तो सफिक्स सिर्फ नाइट्राइल है। बट साइक्लो चेन्स जब होती है, साइक्लिक चेन्स होती है, बेंजीन रिंग लगा होता है, तो हम इसे कार्बोनाइट्राइल लिखते हैं। तो हम उसे कार्बोनाइट्राइल लिखने वाले, साइक्लिक चेन आई तो, ठीक है। मतलब जैसे 1 2 3 ये है, तो इसका नाम क्या आएगा, दिस विल बी रिटन एज साइक्लोप्रोपेन। 3 की चेन है, साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। सो ऐसा नाम दोगे, क्योंकि रीजन टेक्निकली देखो इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 और ये चौथा, जबकि साइक्लोप्रोपेन में हमने सिर्फ 3 का जिक्र किया है, तो कार्बोनाइट्राइल ये होगा, ठीक है। सो ये एक तरीका है लिखने का। सो मैंने बोला है हम जब देखेंगे एक तब हम उसमें लिखने वाले हैं ब्रांचेस में, बट वी राइट एज साइनो, ठीक है। मतलब अगर एक साइड से सपोज एसिड है, क्योंकि वो डोमिनेंट ग्रुप है, और एक साइड से CN है, तो 1 and 2, सो 2 साइनो
इथेनोइक एसिड हम ऐसा नाम देते हैं। ठीक है, सो मैंने बोला है हम लोग जाएंगे इन सब के डिटेल्स में जाएंगे, चिंता मत करो। ठीक है, मैं हूं। सो नाइट्राइल। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आइसोनाइट्राइल्स। अगेन इसकी तो वैसे जरूरत इसकी भी नहीं है, सिलेबस में इसके हार्डली एक आध दो रिएक्शन है, बट वो भी डायरेक्टली नहीं, अल्किल हैलाइड्स उनके साथ रिएक्शन है टू गेट यू दिस। सो फिर भी बट स्टिल, तो दिस इज N ट्रिपल बॉन्ड C, इसको हम आइसोनाइट्राइल ही बोलते हैं। ठीक है, इसको हम आइसोनाइट्राइल भी बोलते हैं, और साइनो है तो ये आइसोसाइनो ग्रुप है। वैसे ये भी ज्यादा कोई पूछेगा नहीं, सो इसकी भी चिंता मत करो। ठीक है, नेक्स्ट वन हम देखते हैं अल्डिहाइड्स। ठीक है, इसके बाद डबल बॉन्ड वाले शुरू होते हैं। अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O और H, या इसको हम CHO ऐसा भी लिखते हैं। अब अगर IUPAC वापस एलिफैटिक चेन है, एलिफैटिक चेन है, तो हम इसे लिखेंगे आल। विल राइट द सफिक्स आल, एंड में सिर्फ AL आएगा फॉर अल्डिहाइड। ठीक है, बट साइक्लो चेन है, साइक्लो चेन है, तो हम इसे लिखते हैं कार्बाल्डिहाइड। साइक्लो चेन है तो विल राइट दिस एज कार्बाल्डिहाइड, अगर साइक्लो ग्रुप है तो। ठीक है, साइक्लिक चेन है तो ये लिखोगे। ठीक है, सो आल है, यहाँ पे नाइट्राइल है, यहाँ पे नाइट्राइल लिखेंगे मेनली, अल्केन की जरूरत नहीं क्योंकि मैं रब भी कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। सो दिस इज द सफिक्स दैट यू नीड टू राइट, एंड ये भी सफिक्स लिखने का जब साइक्लो होगा। यहाँ पे अल्डिहाइड को हम लिख सकते हैं फॉर्मिल, अगर ये ब्रांच में आता है, सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आता है, सो यू कैन राइट इट एज फॉर्मिल ओवर देयर, CHO। ठीक है, लिख लो जल्दी ये तीनों का। ठीक है, सो मैं टाइम देता हूँ, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज आई ऑलरेडी सेड, तो टाइम थोड़ा कम लगेगा। हो गया सबका? चलो देन विल मूव अहेड। सो ऊपर वाला रब कर रहा हूं मैं पहले, चाहे तो ये थोड़ी देर रखता हूं सो दैट यू कैन राइट इट डाउन। देन अल्डिहाइड के बाद आता है कीटोन्स। ठीक है, कीटोन्स का अब देख सकते हो इसका जो इसमें भी फंक्शनल ग्रुप वैसे तो कार्बन है, बट इट विल कम इन मिडिल। यहां तक अब तक जितने हमने देखे थे सब फर्स्ट पोजीशन पे आएंगे बिकॉज दे स्टार्ट विद कार्बन। ठीक है, तो ये एक था। इसका IUPAC नेमिंग एलिफैटिक हो या साइक्लो हो, इसमें हम ओन ही लिखने वाले हैं, हम इसमें ओन ही लिखेंगे। एंड इट इज ऑल्सो रिटन एज, अगर ब्रांच में आया तो ऑक्सो, या तो हम इसे कीटो भी लिख देते हैं। ठीक है, ऑक्सो ग्रुप या कीटो ग्रुप इस नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आएगा अल्कोहल्स, तो अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप OH, साइक्लिक हो या एलिफैटिक हो हम हमेशा लिखेंगे सफिक्स एज ऑल, एंड अगर ब्रांच में आया तो हम इसे लिखते हैं हाइड्रोक्सी। ठीक है, हम उसे क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी। ठीक है, ये भी अल्कोहल्स के लिए है ना। वैसे अमाइंस की बात करें तो अमाइंस में 3 फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, एक तो NH2, एक तो NH, और ये लास्ट वाला इंटरेस्टिंग है, ये लास्ट वाला इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसमें भी आते हैं 3 नाइट्रोजन और 3 बॉन्ड्स। अब याद करो हमने नाइट्राइल्स भी लिखा था ऐसे, तो इसमें क्या फर्क है? इसमें फर्क ये है नाइट्राइल्स में, ये तीनों नाइट्रोजन के बॉन्ड कार्बन ने ही ऑक्यूपाई किए, यहाँ पे 3 डिफरेंट कार्बन करेंगे, 3 डिफरेंट कार्बन करेंगे। सो ये नाइट्राइल है तो ये हायर फंक्शनल ग्रुप था, बट यहाँ पे नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड 3 अलग अलग कार्बन सेटिस्फाई करेंगे, बट बोलेंगे हम इसे अमाइन से। तो इसमें हम सफिक्स में लिखते हैं इसे अमाइन ही। ठीक है, अल्केन अमाइन, एंड इधर अगर देखेंगे तो हम लिखते हैं इसे अमीनो, हम इसे क्या लिखते हैं? अमीनो ग्रुप। ठीक है, सो दीज आर द मेन फंक्शनल। फिर इसका डबल ट्रिपल बॉन्ड तो सबको पता है। हैलोजेंस एक दो और रह गए हैं, तो हैलोजेंस देख लेते हैं। हैलोजेंस मतलब X, मतलब उसको तुम X कैन बी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, तो इसको लिखेंगे हम लोग प्रीफिक्स में, बट हाँ अब इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे सफिक्सेस लिखे हुए हैं। ठीक है, बट ठीक है, मैं आप ये हो गया, इतना लिख लो, फिर मैं तो चेंज कर देता हूँ। ठीक
ठीक है, क्योंकि हमेशा प्रीफिक्सेस में आएंगे, जो अगले दो तीन में बताने वाला वो याद रखोगे। ये सबका हो गया, लिख के। सो ये थे मेन फंक्शनल ग्रुप्स जो सफिक्सेस में आएंगे हमेशा, पर अगर ब्रांच में आए तो प्रीफिक्स में आता है। अब अगले वाले जो दो तीन फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इसको हम लिखते भी हमेशा प्रीफिक्सेस में ही है, एंड जनरली हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स में ही लिखेंगे, तो इसमें अब इसकी जरूरत नहीं है, ये हमेशा वो आएगा उधर ही। ठीक है, सो जैसे एग्जांपल मैंने दिया, एक सपोज पहले लेते हैं अल्कोक्सी ले लेते हैं, फिर हैलो ले लेते हैं। ईथर्स, नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज ईथर्स, एंड फंक्शनल ग्रुप हम एक्चुअली सिर्फ ओ लिखते हैं, दो बॉन्ड्स, बट मेक श्योर बोथ ऑफ देम आर जॉइंड टू अ कार्बन, क्योंकि अगर गलती से एक H को लग गया तो अल्कोहल हो जाएगा, दोनों हो गया तो पानी हो जाएगा। सो इतनी रिक्विजिट तो जरूर है कि वो ऑक्सीजन दोनों साइड से कार्बन, इसलिए बुक्स में हमेशा सिर्फ O लिखते हैं, बट इट्स बेटर टू राइट COC, where obviously O will be the functional group। इसको हम हमेशा प्रीफिक्स में ही लिखेंगे, एंड प्रीफिक्स में लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एज अल्कोक्सी, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं तो वो हैलोजेंस है। हैलोजेंस का फंक्शनल ग्रुप X, where X stands for फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये भी हमेशा प्रीफिक्स में आएगा, एंड इट इज रिटन एज हैलो। मतलब फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। ठीक है, नेक्स्ट नाइट्रो, ये भी एक लास्ट फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, NO2, एंड ऑब्वियसली ये फंक्शनल ग्रुप आए या ब्रांच में लिखेंगे तो हमेशा नाइट्रो ही। तो होप सो सबको समझा है ये कैसे हम लोग करते हैं सॉल्व। सो दिस इज द नेम्स यू नीड टू लर्न, आइडेंटिफाई करते आने चाहिए फंक्शनल ग्रुप देखकर ही। सो ये हम देखते हैं। तो आज हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप, बट जिसमें सिर्फ डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। आज का टारगेट उतना ही है, एंड फिर अगले वीडियो से वी विल स्टार्ट विद से अल्किल हैलाइड्स, क्योंकि उसमें हम उसके कॉमन नेम्स स्टार्टिंग के, मैंने जैसे बताया है तुम्हें बोर्ड्स में भी इसकी मदद हो, तो स्टार्टिंग के 5-6 कार्बन्स के जितने भी अल्किल हैलाइड्स हैं उनके IUPAC नेम प्लस उनके कॉमन नेम्स, ये भी हमें आनी चाहिए। तो वो होने के बाद फिर अपन उसमें डिफिकल्टी लेवल भी देखेंगे। डरो मत, आराम से होगा। क्या तुम्हें करना है, एटलीस्ट मैं उन वीकर बच्चों के लिए भी बता रहा हूँ, ऑब्वियसली दे कैन इंप्रूव ऑन दिस, बट स्टिल किसी किसी को डिफिकल्ट जाता है। सो एटलीस्ट तुम्हें क्या आना चाहिए, इतना तो कर लो कम से कम, तो केमिस्ट्री निकल जाएगा तुम्हारा अच्छे से। ठीक है, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ निकल जाएगा। ठीक है, बोर्ड्स में। फिलहाल हम ये पढ़ रहे हैं, तो सपोज करो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सपोज करो यहां से डबल बॉन्ड, यहां से ट्रिपल बॉन्ड। अगर एक ऐसा क्वेश्चन आया है तो CH2, ये एक क्वेश्चन है सपोज, तो इसका नाम क्या आएगा। अब देखो ये कैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें डबल भी है ट्रिपल भी है। तो अभी हमने प्रायोरिटी लिस्ट में देखा है डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। सो ऑब्वियसली 1 2 3 4 एंड 5, तो लॉन्गेस्ट चेन में तो कोई दिक्कत नहीं। रूल नंबर 2 अब थोड़ा बढ़ जाता है। रूल नंबर 2 क्या बोलते हैं, सो दैट द फंक्शनल ग्रुप गेट्स द लीस्ट नंबर। हम दोनों फंक्शनल ग्रुप को कम से कम देने की कोशिश करेंगे, पर एटलीस्ट जो हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है, जिसको ज्यादा तवज्जो दी जाती है, यू कैन से इन दैट वे, या जिसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है, सो दैट शुड बी गिवन एज द लोएस्ट नंबर। सो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड इज द लोएस्ट, मतलब प्रायोरिटी में हाईएस्ट है तो उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। बाकी का तो तुम्हें आएगा। पहले सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सो इट इज 2, 3, कैपिटल लेटर ओनली वन टाइम, ये एक ही आएगा। इट इज डाइमिथिल। अब लिखना कैसा है ठीक से देखो, लॉन्गेस्ट चेन है 5, सो ऐसा मत लिखना पेंटेन। अब ये लिखने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज नाउ देयर इज डबल एंड ट्रिपल, सो यू जस्ट राइट द रूट वर्ड पेंट। देन हमेशा पहले अल्कीन का जिक्र होगा, सो इट शुड बी 1 इन, नेवर राइट दिस कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि अभी तक नेमिंग बाकी है, तो वो ई की जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, 4 आइन। नाउ वंस द लेबलिंग इज डन, यू विल कंप्लीट दिस। अब अगर कोई सेकेंडरी सफिक्स होगा, सपोज OH है, तो ये ई हटा के सेकेंडरी सफिक्स आएगा। सो लास्ट में ये ई
का मतलब है कि वो नेमिंग यहां तक ही है। सबको समझा है? सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू राइट द प्राइमरी सफिक्सेस ऑलवेज फर्स्ट अल्कीन आएगा फिर अल्काइन आएगा, ठीक है। एक ये ट्रिक क्वेश्चन आया था, एग्जाम का है, अब इसमें बहुत बच्चे मार खा जाएंगे, ठीक है। सपोज करो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, अभी इसमें बच्चों ये बहुत अच्छे से याद रखो, ऐसा ये ट्रिक क्वेश्चन आके भी गया हुआ है। अब अगर इसका नाम देना है तो बहुत बच्चे कैसे करते, सिंपल, अब इसमें तो लकीली कोई सब्स्टिट्यूएंट्स भी नहीं है, तो लॉन्गेस्ट चेन चूज करने में तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, जो कि 6 का बन गया। अब बहुत बच्चे क्या गलत करते हैं, जैसे हमको पता है डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल, तो 1 2 3 देखोगे, 1 2 3, ठीक है। एक काम करता हूं, रुको जरा, इसको थोड़ा और यहां ले लेता हूं मैं जरा। सो ये है, हाँ मतलब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि पहले ट्रिकी नहीं था वो, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर देखो आएगा तुम्हें, तो कैसे नाम करोगे ना। नॉर्मल टेंडेंसी बच्चों की क्या होती है कि डबल बॉन्ड साइड से जाए, यहां से तो ट्रिपल दिख रहा है, डबल, बच्चे क्या सोचते हैं 1 2 3 4 5, बराबर। एंड नाम लिखेंगे क्या, हेक्सटूइन 5-ine, ठीक है, हेक्सटूइन 5-ine, ऐसा वो नाम दे देंगे। बट फिर वो गलत भी है, तुम जरा थोड़ी देर के लिए यहां से जाओ, क्योंकि चलो तुम अगर यहां से जा रहे हो तो तुम्हारा पहला फंक्शनल ग्रुप 2 पे है, अगला 5 पे है, तो दैट मेक्स इट 7, ठीक है। अब ये भी ट्रिक है उसमें, देन 1 2 3 एंड 4 है ये। सो अगर तुम ये साइड से जाते हो 1 + 4 विल मेक इट 5, तो लोएस्ट लोकन रूल भी फॉलो करना है हमें। तुमको ये बताया गया है, number the longest carbon chain such that the functional group gets the preference and it should follow the lowest locant rule। तो lowest locant rule यहाँ पे हमें फॉलो भी करना है एंड फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से भी। तो यहाँ से नाम मतलब इसका नेमिंग यहाँ से शुरू होगा, बिकॉज तभी लोएस्ट लोकंट रूल फॉलो होता है, ठीक है, ऐसे केस में। सो इसका नाम एक्चुअली आना चाहिए, इट इज हेक्स, बट लिखेंगे हम पहले अल्कीन ही, 4-ene 1-ine, so this should be the name of this compound, ठीक है। तो याद रखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे एंट्रेंस में ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं कि प्रेफरेंस, बट प्रेफरेंस शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ लोएस्ट लोकंट रूल, ठीक है, खास। और इसे अल्कीन अल्काइन के लिए लागू होगा। अगर गलती से यहाँ पे OH रहेगा तो इसी को पकड़ना पड़ेगा हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। OH अगर रहेगा वहां से सेकंड, और यहाँ से ये भले फर्स्ट पे है, स्टिल OH को ही प्रेफर करोगे। ये सिर्फ डबल ट्रिपल के केस में, ये सिर्फ डबल ट्रिपल के केस में लोकंट रूल का भी ख्याल रखना है। तो मैंने जैसे बताया था, क्योंकि हम इन्हें सफिक्सेस में ही लिखते हैं, ठीक है, प्राइमरी सफिक्सेस में ही लिखते हैं, तो वो याद रखोगे। सबको समझा है? तो ये 2 हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। अब थोड़ा सा एक और देख लेते हैं कैसे होगा। अब ये एक क्वेश्चन आ सकता है, ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा तुम्हारे लिए। सपोज ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, और ये क्वेश्चन है। चलो अब थोड़ा ट्रिकीनेस इसका मैंने बढ़ा दिया है। अब अगर इसमें से मुझे चूज करना है लॉन्गेस्ट चेन, तो किसे चूज करूंगा? देखो अगर स्ट्रेट गया तो दोनों डबल बॉन्ड है, यहां से यहां आया तो डबल ट्रिपल है, यहां से यहां आया डबल ट्रिपल है, मतलब एक फंक्शन ग्रुप तो छूटना ही छूटना है। तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया था हाईएस्ट प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को है, तो तुम वो चेन चूज करोगे जहां से डबल बॉन्ड्स एटलीस्ट दोनों आ रहे हैं। तो ट्रिपल गया ब्रांच में, ये सब्स्टिट्यूएंट में ढकेल देंगे अपन। सो नंबरिंग कहां से करोगे? 1 2 1 2, दोनों साइड से सेम है। 4 पे आ रहा है तो किसी साइड से भी जाओ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट की यही लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 एंड 3, तो पहले इसका नाम दोगे। तो रूट चेन में कौन से नंबर पे है? 4, फोर्थ को लगा है इसका फर्स्ट 1 2 3, सो इट विल बी 1 प्रो। अब उधर भी ट्रिपल बॉन्ड है, इट इज 1 आइन आइल। तो मैंने बताया था ब्रांच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आया तो ऐसे लिखोगे, प्रो 1 आइन आइल, एंड बाकी का तो तुम लिख सकते हो, इट इज हेप्टा लिख सकते हो, बिकॉज 2 डबल बॉन्ड्स है। हेप्टा, इट इज 2, 5,
डाइईन, दिस हेप्टा 2,5 डाइईन। तो ऐसे भी क्वेश्चंस तुम्हें मिल सकते हैं। सब समझ में आया? तो प्रिफर हमेशा डबल बॉन्ड को ही करोगे, बट ये भी देखना है कि अगर बाकी ब्रांचेस या बाकी फंक्शनल ग्रुप रहे तो ऑब्वियसली दोस फंक्शनल ग्रुप आर प्रिफर्ड, क्योंकि वो सेकेंडरी सफिक्सेस में लगेंगे एंड वो डोमिनेंटली लिखे जाएंगे। तो सबको होप सो समझा है डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स को कैसे लिखना है। एक साथ दो डबल बॉन्ड्स आए, एक डबल ट्रिपल आया, ऐसे चेन में डबल ट्रिपल आए है, तो कैसे चेन चूज करने, होप सो समझा है। सो आगे आगे के फंक्शनल ग्रुप्स में हम ये सारे इंक्लूड करते जाएंगे। थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने वाली है अभी ध्यान देकर अगले फंक्शनल ग्रुप जरूर देखना। हम उसमें सिंपल वर्जन भी करेंगे, डिफिकल्ट वर्जन्स भी करेंगे, ताकि तुम हर साइड से ट्रेन हो सको। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक एक फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे। टिल देन गाइज, hit the like button, subscribe the channel, share it with your friends, hit the bell icon for further notifications. Thank you.